So we have left our discussion to this one, like why the bond angle with carbon is not 90° when it forms bond in excited state. So this is what we have been discussing through. Like हमने ये देखा था उसमें कि excited state में जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, so we were finding it has 4 bonds like this one. ये चारों हमारे पास ऐसे थे, 1 2 3 4, and we understand that P has 3 orbitals, Px, Py and Pz, and these are present at 90°. Therefore चूंकि यह 90° पे है, तो ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स होने चाहिए वो 90° पे होने के कारण से it should be forming bond like that, यानी 90° पे एंगल होना चाहिए, and so this carbon should have been forming bond like this one. यानी CH4 में जो एंगल होना चाहिए था वो 90° का होना चाहिए था, but this is not the case. This is not the case. So why? This is what the motto of our discussion today. Now इसी की डिस्कशन की हम लोग बात करते हैं. तो यहाँ पर अब इसके और इसके बॉन्ड फॉर्मेशन के बीच में एक प्रोसेस और होता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. यानी यहाँ पर एक और टर्म की हम लोग बात करते हैं. आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ टर्म दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, एंड व्हेन आई से हाइब्रिडाइजेशन, सो दिस टर्म इज अगेन अ प्योरली मैथमेटिकल आइडिया है. ये दिस इज प्योरली अ मैथमेटिकल आइडिया, प्योरली अ मैथमेटिकल आइडिया. मैथमेटिकल आइडिया इसलिए कहते हैं, यानी इसमें इसलिए है there is no physical significance, नहीं है, no physical significance, no physical significance, physical significance. Why it is so? We accept that कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड बनता है. So we need to understand its definition. इसलिए इसका definition जो है वो हमारे लिए बहुत ही important है इसको समझना. And so here when it comes to its definition, इसी को हमें ढंग से सुनना है, समझना है. So just be alert with the definition and try to understand this. इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों को समझना है. हर एक शब्द जो है इसमें ये बहुत ही important है. हर एक शब्द को हमें elaborate करना है, हर एक शब्द को हमें बढ़िया तरीके से समझना है. And so it is defined as this. इसको जो हम define करते हैं कुछ इस तरह से define करते हैं कि this is called mixing of atomic orbital, mixing of atomic orbitals of similar energy and same symmetry to form orbitals of identical energy and equal in number to number of orbital mixed. So this definition has all the elements what we need to have. यानी इस definition को हमें हर एक term को मैं define कर लूं, then हमारे लिए इस चीज को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा. Then it is very easy for us to explain exactly what the idea behind this is. So the very first term that we need to elaborate is this is mixing of atomic orbital. Then similar energy, and then there is same symmetry to form orbitals of identical energy. Identical energy का orbital बनता है, equal in number है than the number of orbital mixed, इसको हमने mix किया उसके साथ. So we have to elaborate each of the following terms. So when I say पहला term हमारे पास आता है यहाँ पर atomic orbital हमने लिखा है इसमें. So when I say atomic orbital, so we define atomic orbital as हमने ऐसे define कर रखा है कि orbital of same atom, number one, orbital of same atom, and therefore this is an atomic process. Therefore this is an atomic process. यानी ये एटम के अंदर ही होता है, एटम के within the atom. ये molecular process नहीं है, atomic process. This is an atomic process है. And then we define here orbital. The moment I say orbital, तो orbital को हमने कैसे define कर रखा है? Orbitals are defined as, we can say, the three-dimensional space around the nucleus. Three-dimensional space around the nucleus, where probability of finding electron is maximum.
is maximum. This is what the definition of, yani again we can say this is probability of finding electron. The moment I say this is probability of finding electron है, इसका मतलब क्या हो गया कि this is a mathematical concept है. ये हमारा क्या है, एक mathematical concept है, or we can say this is just a mathematical idea. So we can write here this is mathematical idea. मैथमेटिकल आइडिया है ये. और यदि यह मैथमेटिकल आइडिया है तो इसको हम लोग फिजिकली कनेक्ट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट इमेजिन कि हमारे पास एक एटम है, न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ हमारे पास ये ऐसे एग्जिस्ट करता होगा. दिस इज टोटली इनकरेक्ट आइडिया. दिस इज टोटली इनकरेक्ट परसेप्शन. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. इसमें ऑर्बिटल्स है, फिर हमने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एंड सो वी आर डिस्कसिंग लाइक दिस. नाउ so what we just have explained is atomic orbital, and then we have defined orbitals. Now what is the next term, that is same symmetry, mean to us? So when I say same symmetry, this symmetry is all about related to the mathematical function which are used to explain the process of hybridization. यानी जिससे हम लोग प्रोबेबिलिटी को रिलेट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वेव फंक्शन से हम लोग रिलेट करते हैं. Because this probability of finding electron is proportional to this one, probability density के proportional है, यानी psi square के proportional होता है. तो वो psi जो है हमारे पास, that psi is called wave function. And when we talk about wave function, तो ये जो symmetry है वो property है, mathematical property है, same symmetry का होना चाहिए. यानी wave function जो होना चाहिए वो similar होना चाहिए, similar nature के होने चाहिए. Similar nature कहने का मतलब है यदि हमारे पास एक पॉजिटिव वेव फंक्शन है, दूसरा वेव फंक्शन भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव वेव फंक्शन होना चाहिए. सो दिस सिमेट्री इज रिलेटेड टू द साइन ऑफ वेव फंक्शन. सो दिस इज रिलेटेड टू द साइन ऑफ वेव फंक्शन, टू द साइन ऑफ वेव फंक्शन which are used to represent atomic orbital containing an electron. So we can say this is the sign of wave function है, जो कि किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए हम लोग उसको यूज करके एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. सो इसमें ये क्या होना चाहिए, सेम साइन वाले वेव फंक्शंस होने चाहिए. सो दिस इज mixing of wave function of same sign, wave function of same sign की wave function की mixing होती है, and then only we are getting the right kind of orbital जो कि bond formation में participate कर पाएगा. Then I have written here identical energy. This is again equally important, similar energy जो हमने लिखा है यहाँ पर. So when I say this is similar energy के orbitals होने चाहिए, तो again this is very important to know similar energy मतलब यहाँ पर यह है कि similar energy, यानी यदि ऐसा है कि मान लो यदि किसी ऑर्बिटल, किसी एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो बहुत ही, उन दोनों में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो फिर उसमें मिक्सिंग नहीं हो पाएगी. सो और इसमें वही वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिनके बीच का एनर्जी गैप जो हो वो ऑलमोस्ट इक्वल हो. सो इन दिस process only those orbitals are participating which are very close in energy, जो बहुत ही क्लोज है एनर्जी में, वही ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. जब गैप बहुत ज्यादा हो, when the gap is large, orbitals with huge gap of energy cannot mix. यानी जो मिक्सिंग पॉसिबल है तभी होगा यदि जिसके मिक्सिंग होने वाले ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो करीब बराबर हो, तभी उसमें मिक्सिंग होती है. इसका एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल है, यदि हम चर्चा करें
कि why pH5 is not formed, that I will explain later on. मैं थोड़ा सा explain करूंगा pH5 जो है वो not formed, ये form नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, that we can see, इसको हम लोग समझेंगे और that we can apply to this. Similarly we can see, इसमें और भी चीजों को देखेंगे यहाँ पर इससे रिलेटेड, कि pH3 का जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ pH3 की बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ pH3 की हम लोग चर्चा करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ pH3 इसकी भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्या होता है और क्यों होता है, कैसे होता है. सो इनमें जो मैं आंसर बता रहा हूँ यहाँ पर कि दिस इज नॉट हाइब्रिडाइज्ड, ये हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता, नॉट हाइब्रिडाइज्ड. नाउ यू जस्ट पॉन्डर ओवर दिस, इसके बारे में थोड़ा सोचना समझना और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक. बट दिस इज व्हाट, सो वी हैव टेकन हियर कि उसी ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी जिसकी एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर हो. देन वी हैव अगेन वन मोर थिंग कि यहाँ पर सेम सिमेट्री हो गया, सिमिलर एनर्जी हो गया, फॉर्म ऑर्बिटल ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी एंड इक्वल इन नंबर. अब इसके बाद यहाँ पर यह भी है कि इसमें जो बनने वाले ऑर्बिटल्स होंगे, सो द न्यूली जनरेटेड ऑर्बिटल्स have equal energy and are identical in shape. For example मैं बात करूं, मान लो जैसे मैंने अभी लिया था यहाँ पर कि जैसे कार्बन की हम लोग बात कर रहे थे, जैसे ये एक S है और हमारे पास ये 3 P है, 1 2 3. अच्छा, इसमें एक और भी चीज हमने यहाँ पे लिखा था, दैट वाज ये था यहाँ पर कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है. नंबर ऑफ ऑर्बिटल बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल टू number of orbitals after mixing. In a way we can say number of orbitals are conserved. इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि number of orbitals are conserved. ये conserved होता है, conserved है यहाँ पर. And so we will be just explaining this one कि ये S है, ये वाला P है, PX ले लो, PY मान लो, PX PY और ये PZ है हमारे पास. इसमें कैसे मिक्सिंग होगी उसको हम लोग देखेंगे. But before that please have a look, इसको थोड़ा सा एक बार quickly आप देखें and then I'll again explain the remaining things. So when we have these 4 orbitals, S है हमारे पास, एक PX हो गया, एक PY हो गया, एक PZ हो गया. Randomly मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है. PX, PYZ, PZ could be anyone, इसमें कोई सा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. They are all equal in energy, सारे के सारे equal in energy में है. And so we just have to mix them up. और ये मिक्सिंग के लिए जो सिंपल रूल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमें मिक्स करना है. हम कितने तरीके से मिक्स कर सकते हैं इसको, सो वी हैव दीज वेज, हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज है, उन पॉसिबिलिटीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. नंबर 1, यदि मैं इसकी बात करूँ तो मैंने इसमें क्या किया कि एक ही S लिया और एक ही P लिया. सो आई हैव जस्ट टेकन 1 S and 1 P. एक S मतलब यहाँ पे नंबर की बात कर रहा हूँ, एक S ये वाला लिया और सिर्फ एक P के साथ हमने मिक्स किया. And so what we have got is only one this is mixed. ये और ये वाला हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया यहाँ पर. सिर्फ मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, जिसके कारण से मेरे पास जो बनने वाले हैं यहाँ पर ये 2 ऑर्बिटल की ही हमने मिक्सिंग की है, लाइक दिस. सेकेंड केस जो हमारे पास बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, अगेन सेकेंड केस में हमने लिया यहाँ पर कुछ ऐसे कि एक S का ऑर्बिटल लिया है और 2 P का ऑर्बिटल ले लिया हमने. तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो इन दोनों को हमने फिर से मिक्स करना है, तो मिक्स करेंगे. और इसमें हमने थर्ड केस जो ले रखा है यहाँ पर, एक S और 3 के तीनों P, ये तीनों एक S और ये वाला और ये वाला और ये वाला. सो फ्रॉम दिस वन व्हेन यू डू द मिक्सिंग पार्ट हम करेंगे इसमें, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास ये वाला 2 को हमने मिक्स किया, एक हमारे पास ऐसे ही रह गया. लेकिन दोनों की जो हमारे पास ये वाला ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऐसे ही है, ये वाला ऐसे ही है, ये वाला हमने चारों को मिक्स कर दिया. सो इफ आई लुक एट दीज, यदि मैं इन सबको देखूं तो हमने बेसिकली मिक्स किसको किया है, एक S को और एक P को. एंड सो आई एम राइटिंग हियर S1 P1. एंड देयरफॉर वी कैन सी, मैं इससे पूछूं आपसे कि भाई इसमें कितना S कैरेक्टर है कितना P कैरेक्टर है, सो वी कैन इजीली से ये 1 है ये 1 है, यानी 50%. सो 50% S कैरेक्टर 50% S कैरेक्टर
and 50% p character, and hybridization is sp, hybridized है, और नंबर कितने बनेंगे, 2 in number, 2 नंबर में हमारे ये बनेंगे, यानी 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। कैसे, उसका फोटो भी हम लोग देखते हैं अभी, पहले इनको भी हम लोग पहले कंप्लीट कर ले यहाँ से। सो इन दिस केस व्हाट वी गेट इज s, एक s हो गया, और p हमारे पास 2 होंगे, एंड सो इन दिस केस वी कैन से परसेंटेज s वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे 33.33% है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इज 66.6%, so here we can write 66.6%, ये आ गया। एंड हियर अगेन वी कैन से इन दिस केस, यदि मैं देखूं यहाँ पर तो कितने बनेंगे, 3 ऑर्बिटल को हमने मिक्स किया, so 3 sp2 hybrid orbitals are formed, sp2 hybrid orbitals are formed। बच्चे इसमें थोड़ा एक और बात को में ध्यान रखना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, इसमें एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है, प्लस ये 3 ऑर्बिटल तो बन गया, एक हमारे पास क्या है इसमें, एक प्योर p ऑर्बिटल है, दिस वन इज प्योर p, दिस वन इज प्योर p, सो प्लस 1 प्योर p ऑर्बिटल, एक प्योर p ऑर्बिटल बचा हुआ रह गया। इन दिस केस वी हैव 2 इन नंबर, 2 तो हमने मिक्स कर दिया, यहाँ पर ये दोनों कैसे बच गए हमारे पास, ये दोनों प्योर p ऑर्बिटल हमारे पास है, प्योर p ऑर्बिटल, सो 2 इन नंबर प्लस 2 प्योर p बन गया। इन दिस केस यहाँ की बात करें हम लोग, तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये 4 के चारों बन गए, यानी वी हैव 4 sp3, 4 sp3, क्योंकि 4 ऑर्बिटल को हमने मिक्स किया, 1 2 3 4, 4 को मिक्स कर रहे हैं, इसलिए 4 संख्या में sp3 बनेगा, एंड फॉर दैट वी कैन से परसेंटेज s कितना है, परसेंटेज s इज इक्वल टू 25 हो गया, और परसेंटेज p की बात करें, सो वी कैन से परसेंटेज p इक्वल टू 75% है हमारे पास, सो वी कैन से दिस इज द ऑर्डर ऑफ s एंड p कैरेक्टर। व्हेन आई से लाइक दिस, तो हमारे पास ये 4 बन रहे हैं, इसमें no pure p orbital is remaining, no pure p orbital is remaining here, no pure p orbital is present here, यहाँ पर कोई भी pure p orbital present नहीं है, present here, so this is how we can say there is no pure p orbital present in this particular case। now from this, अब यहाँ से फर्दर हम देखते हैं, यहाँ पर तो इसमें हमने क्या किया, एक s और एक p को मिक्स किया, s का शेप होता है कुछ ऐसे, हम लोग दिखाते हैं, दिस इज s, और p हमारा कुछ ऐसे होता है, सो दिस वन इज p, यहाँ पे ये वाला क्या है, हाइब्रिड, इसमें इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये लोब्स कहलाते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला जो है ये लोब कहलाता है, ये लोब है, ये भी लोब है हमारा, ठीक। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे इसमें, तो मैं हल्का सा इसको डार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पर, सो दिस डार्क पोर्शन जो है हमारे पास यहाँ पर ये वाला है, इसको दूसरा कलर दे देता हूँ अगर मैं, तो ज्यादा बढ़िया होगा। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं नोड, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है, बिल्कुल 0 मतलब 0, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जब हमने 2 ऑर्बिटल को मिक्स किया तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास 2 प्योर p ऑर्बिटल्स बनेंगे, इन दोनों का मिक्सचर होगा, और वो जो मिक्सचर होगा दैट वुड बी लाइक दिस वन, यानी ये वाला एक ऐसे, जिसमें कि ये वाला ऑर्बिटल, यहाँ पे देखो ये वाला, इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऐसी हो गई, और इसमें यहाँ पर ये प्लस, इसको प्लस से दिखाते हैं, और ये वाला माइनस हो गया। सिमिलरली एक ये वाला है, ये प्लस, एक और हमारे पास बनेगा, ये वाला ऐसे हमने बनाया। तो जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा, so this is a larger lobe, और ये वाला छोटा लोब ऐसे बन गया। so there is difference between normal sp जो प्योर, दिस इज प्योर ऑर्बिटल है, ये प्योर ऑर्बिटल है, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, these two are we can say हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो ये दो को हमने मिक्स किया था, ये दो ऐसे बन गए। यदि मैं इसी को s और p sp2 वाले की बात करता तो यहाँ पर क्या बन जाता उस केस में, in case of sp2 you will have 3 such orbitals like this one, यानी यहाँ पर कुछ ऐसे बनेगा, एक ये वाला, यानी 3 ऐसे ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। इन दिस केस वी हैव 3 ऑर्बिटल्स, अगेन प्लस और माइनस है ये वाला, और इस केस में कितने बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे हमारे पास ऐसे, एंड सो यू विल हैव दिस ऑर्बिटल 4 इन नंबर, यानी ये वाला प्लस और ये वाला, सॉरी ये माइनस, नीचे वाला माइनस और ये वाला प्लस। तो दिस इज 2 इन नंबर, यहाँ पर ये 2 बने, यहाँ पर ये 3 बनेगा, यहाँ पर ये 4 बनेगा।
So these are forming hybrid orbitals in these cases. अच्छा, apart from that, इसमें दो ये तो बन गया, बाकी दो जो हमारे पास प्योर p थे वो प्योर p का प्योर p ही रहेगा, and so you will have these two orbitals are pure p like that, यानी प्योर p हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये प्लस एक और ऑर्बिटल होगा प्योर p वाला जो कि ऐसे रहेगा। इस केस में सिर्फ एक प्योर p है, इसमें कोई प्योर p नहीं है। So this is how we have to deal with it. इसके साथ हम लोग कुछ ऐसे समझते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। The newly formed hybrid orbital has larger lobe due to constructive interference and therefore this when combines with other orbital forms stronger, बच्चे ध्यान रखना इस पर, stronger and directional bond यानी combines with other orbital forms stronger and directional bond. This is very much important. यानी यदि आपसे पूछे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है, तो yes we can say like that, हम लोग कुछ ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो अल्टीमेटली क्यों हो रहा है कि अब जो इससे नया बनने वाला बॉन्ड होगा वो ज्यादा मजबूत बनेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शेडिंग होगी। अब सोचो यहाँ पर कि हमने ये कहा कि ज्यादा इसमें लोब्स जो है वो बहुत ज्यादा बन रहा है, लोब्स में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो यदि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेडिंग भी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और जब इलेक्ट्रॉन की शेडिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड कैसा बनेगा, ज्यादा मजबूत बनेगा, and so it is forming a stronger bond and it will also form the directional bond, ये फॉर्म करता है, and this is what we call about this hybridization। हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया। अब हमें ये देखना है इन सब के कि ये सब जब आपस में कंबाइन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको, सो हाउ डू दे डिराइव द शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, यानी इससे शेप कैसे डिटरमाइन होता है, दैट वुड बी पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन ऑफ द नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे इसमें कि कैसे ये सारे के सारे किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को डिराइव करते हैं, कैसे वो ड्राइविंग फोर्स कैसे बन जाता है, ऑल दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ बने रहें, ठीक, and then we'll continue in for the next class. So just remember this one, ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल फैक्ट था, इसको हमें बहुत बढ़िया से याद रखना है और इसी को हम लोग आगे यूज करेंगे। टेक केयर।